Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Good morning everyone. I am Sanish Kumar Singh. I secured All India Rank 8 in Indian Forest Services exam 2024. I have completed my education from different parts of India. So initially I did my education till 2nd standard in my village, which is in Gahmar, Uttar Pradesh. And after that my dad was in army. So we have traveled to different places. So my early education was from Nagpur, and then from Bhuj, Kutch. I have studied always throughout in Kendriya Vidyalayas, and post my 12th I prepared for IIT JEE and I went to NIT Surat for my BTech in Civil Engineering and then MTech in Structural Engineering from IIT Bombay, and there I started preparation for my UPSC exam. So in the second year of my MTech, I gave my first attempt. So I started my preparation in 2017, and since IITs have a good placement, so I decided to test myself whether I can prepare for UPSC or not. So because in college days we are not used to study for long hours. So first attempt I gave as a trial, and in second attempt I cleared prelims and I wrote civil services mains along with my MTech, but I didn't clear mains by a margin of 6 marks. Then I was not able to clear prelims for next 2 years in 2019 and 2020, and since I was left with 2 more attempts, so I left my preparation from 2020 2023. Along with the office work, I started preparing again in 2023, and finally in my last attempt I got this rank. So I want to thank all my mentors and friends who has been a part of this journey. तो मैंने अपनी preparation 2017 में चालू करी, और उस समय मुझे लगता था कि मैं ये यूपीएससी के जर्नी में स्टार्ट करूँ भी कि नहीं. ये चीज़ तय करने के लिए मैंने लमसम 55 से 60 दिन नॉन स्टॉप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करी, और जब मुझे लगा कि मैं रेडी हूँ और मैं इतना पढ़ सकता हूँ, उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी करने का फ़ैसला किया. तो उसके बाद मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स हो गया था और मेंस मैंने लिखा था, लेकिन उसमें मेरे कुछ नंबरों से रह गया था. उसके बाद तीसरे अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और चौथे अटैम्प्ट मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी एक्सिस बैंक में डेटा इंजीनियर के तौर पे, और उसके साथ मैंने प्रिपरेशन करी, बट वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ. जब मेरा 2 अटैम्प्ट सिर्फ बचा हुआ था, तो मुझे समझना था कि मैं किस वक्त वापस से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ. इस वजह से मैंने अपने 3 साल का ब्रेक लिया प्रिपरेशन में, 2020 से 2023 तक. 2024 में मैंने वापस अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, और 5वें अटैम्प्ट में मेरा सीसेट क्लियर नहीं हुआ, बट मेरे प्रीलिम्स में जीएस में काफ़ी अच्छे नंबर थे, और 3-4 महीने के प्रिपरेशन के वजह से इतना अच्छा नंबर आया था. तो मुझे लगा कि शायद मैं आखिरी अटैम्प्ट में सब कुछ छोड़ के एक बार वापस से प्रिपरेशन करता हूँ, शायद सब अच्छा हो जाए. तो फिर मैंने आखिरी अटैम्प्ट के लिए 1 साल का जॉब का ब्रेक लिया. मैंने जॉब छोड़ दी थी, और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. इनफैक्ट मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फाइनेंशियली, इमोशनली. तो उस वजह से आज मुझे ये रैंक प्राप्त हुई, और मैं आगे अपना स्ट्रैटेजी साझा करना चाहता हूँ फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ, और जिससे वो भी सफलता की ओर जा सके. तो पहला चीज़ है कि ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्ज़ाम जो है वो 3 पड़ाव हैं इसमें. एक है प्रीलिम्स का, देन मेंस का, एंड देन इंटरव्यू का. प्रीलिम्स में इसका कट ऑफ नॉर्मल मतलब अपने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से लमसम 12 से 14 नंबर ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा नंबर स्कोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए. एनालिसिस के दौरान हम ये देख सकते हैं कि कौन से एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस है क्वेश्चंस का, और दूसरा चीज़ कि क्या स्ट्रैटेजी लगा सकता है, या एग्ज़ामिनर माइंडसेट क्या है जब वो कोई क्वेश्चन आता है. ये हमें हेल्प करता है कभी कभार गेस्टिमेट करने के लिए, गेस वर्क करने के लिए. तो
ये ज़रूरी है कि हम POI के एनालिसिस करें। एंड उसके साथ मैं अगर रिसोर्सेज की बात करूँ तो मुझे लगता है कि लगभग मैक्सिमम एस्पिरेंट का प्रीलिम्स का रिसोर्स सेम होता है। फिर भी मैं सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूँगा कि जैसे पॉलिटी के मैंने M लक्ष्मीकांत के अलावा और कुछ पढ़ा नहीं। हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम पे ही फोकस किया मल्टीपल टाइम रिवीजन करके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने NCERT की 11th-12th की बुक्स पढ़ी। ज्योग्राफी के लिए मैंने मृणाल पटेल सर की यूट्यूब के वेबसाइट से मैंने एक रतांजिल सोलंकी मैम का पूरा ज्योग्राफी का बहुत ही हॉलिस्टिक कोर्स है, वहाँ से मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने नोट्स बनाए थे और वो अब तक मुझे वो साथ दिया। और फिर उसके बाद इकोनॉमी के लिए मैं श्रीराम IAS के नोट्स से पढ़ता हूँ और मृणाल सर की वेबसाइट से भी मैंने पढ़ाई करी। और उसके अलावा मैपिंग के लिए मैंने एटलस वगैरह रेगुलरली यूज़ किया। और एक यूट्यूब पे एक पहले कभी एग्ज़ाम से पहले एक सुदर्शन लोधा सर हैं, वो एक मैपिंग का एक अच्छा खासा 6 घंटे का 8 घंटे का मैराथन सेशन टाइप से होता है, उनसे मैंने उसका मैंने सहयोग ज़रूर लिया। तो इसके अलावा प्रीलिम्स का तो ऐसे ही रहा प्रिपरेशन, और मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी ज़रूरी है कि हम प्रीलिम्स और मेंस को एक ही मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम प्रिपरेशन उस तरह से करें कि हम वो चीज़ें अच्छे से कर पाएँ। तो अब मैं मेंस की बात करूँ तो मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में फॉरेस्ट के मेंस की बात करूँगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट का मेंस क्लियर किया है। फर्स्ट टाइम मैंने फॉरेस्ट का मेंस दिया है और लमसम 50 दिन के में ही मैंने ये प्रिपरेशन किया है, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर 2024 में सितंबर में सिविल सर्विसेज का मेंस था, उसके बाद हार्डली 50 दिन ही था। तो 50 दिन में मैंने 2 सब्जेक्ट नए सिरे से पढ़े, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट, जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें मैं कहूँगा कि अपूर्व दीक्षित सर हैं एक IFS 2021 बैच के, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी काफ़ी डिटेल में दी थी कि किसी को अगर 45 दिन की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करना चाहिए। उसको मैंने काफ़ी ध्यान से इम्प्लीमेंट किया। तो मैंने जियोलॉजी लमसम 35 दिन में तैयारी करी और फॉरेस्ट्री मैंने 10 दिन, तो 45 दिन ये हो गए थे। और 2 दिन मैंने जनरल नॉलेज की तैयारी करी और 1 दिन मैंने जनरल इंग्लिश की। तो इसमें ज़रूरी बात यह है कि फ़ॉरेस्ट में सिलेबस नया होगा, उससे अपने को डरना नहीं चाहिए। और मतलब अगर आप फेस कर सकते हो सिचुएशन को और अगर आप हिम्मत रखते हैं कि भाई आप 45 दिन पढ़ सकते हैं, तो बहुत आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो 50 दिन आपको बहुत ही अच्छे से फोकस्ड होके देना पड़ेगा। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो GK का मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता शायद इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मेरा सिविल सर्विसेज का मेंस मैंने 2 महीने पहले ही लिखा हुआ था। तो जियोलॉजी में मैं ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहूँगा कि जियोलॉजी वैसे बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, पर जैसे अगर आप पूरा सिलेबस देखेंगे तो उसमें 12 ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। उस 12 में से 5 से 6 टॉपिक हैं जो बहुत ही जनरल टाइप से हैं, या फिर आप उसको 2-3 बार पढ़ के याद कर सकते हैं। और 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल द इजी टॉपिक्स जो हैं आपके हैं, जनरल जियोलॉजी आपकी काफ़ी इजी है, जियोमॉर्फोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग इजी है, इकोनॉमिक जियोलॉजी इजी है, माइनिंग जियोलॉजी इजी है, एनवायरमेंटल जियोलॉजी इजी है। तो उसमें इन सब सब्जेक्ट्स को आप शुरू में 2-2 दिन दीजिए, और आप अगर 15 दिन में इन पे कंफर्ट लेवल पा जाते हैं तो आपको एक काफ़ी अच्छा लगता है कि आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो आपको बाकी फोकस आपको फिर हार्ड वाले टॉपिक्स पे करना है जहां आपके ज़्यादा दिन लग सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। और मिनिमम 3 से 4 बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जियोलॉजी में काफ़ी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको रेगुलरली याद करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है। तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। जो चीज़ें आपको अगर याद नहीं होती है उसके आप क्या कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे आप नोट्स बनाइए, अपने दीवारों पे चिपकाइए, कोई एक कॉपी मेंटेन कर लीजिए जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जिनको याद करने की ज़रूरत है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, उससे मुझे काफ़ी हद तक मदद मिलता है जियोलॉजी के पेपर 1 में। तो इस वजह से मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आ गए थे इन 35 दिनों के प्रिपरेशन से भी। और इसके अलावा फॉरेस्ट्री का मैंने डायरेक्टली नोट्स, एक अपूर्व दीक्षित सर के PDF नोट्स हैं, उसको मैंने 10 दिन में कम से कम 4 बार पढ़ लिया और बहुत ही कॉन्साइज नोट्स थे, तो उसके वजह से भी मेरा एक तरह से वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। तो ये तो रही बात अपने मेंस की। और उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इंटरव्यू प्रिपरेशन की। तो इंटरव्यू का डेट्स लगभग फॉरेस्ट सर्विसेज के 3 से 4 महीने का टाइम अपने को मिलता है। तो मैंने वो प्रिपरेशन अपने जैसे मेरा मेंस होने के बाद मैंने अपनी वापस से मैं डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में चला गया और मैं
जॉब करना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो जॉब के साथ प्रिपरेशन करना इंटरव्यू का बहुत आसान है। मतलब आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए हार्डली 2 से 3 घंटा अगर आप हफ्ते में अगर निकाल लें हर दिन, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वक्त है वो। तो उसके वजह से मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन बहुत ईजी रहा। और एक चीज़ ये भी होता है कि आपको पीयर ग्रुप बना लेना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि पीयर ग्रुप से जब आप डिस्कशन करते हैं तो आपकी क्लैरिटी आती है थॉट्स में, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होता है। और जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं उसको आप 1-to-1 मॉक खुद ही कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वो काफ़ी हेल्प करता है आपको एक्चुअल इंटरव्यू में भी आंसर देने के लिए। और दूसरी, जहाँ मैं मॉक इंटरव्यूज़ की बात करूँगा, तो वहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ एटलीस्ट हमें 4 से 5 कर लेना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में आपको एक मौका मिलता है कि 4-5 लोगों से इंटरेक्शन में आपको अपने को भी जानने का मौका मिलता है। लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके कुछ कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स होते हैं तो वो आपको लेनी चाहिए। और अगर काफ़ी नेगेटिव इनपुट्स हैं और वो लगता है कि आपको बिहेवियर ही पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो जो कि काफ़ी मुश्किल है कि आप 3 महीने में अपने खुद के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। और कई बार ऐसे 1-to-1 विथ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आप कभी ट्राई कीजिए कि आपके कनेक्शन में अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आप उनसे 1-to-1 कीजिए, तो उससे आपको एक ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड रिपोर्ट मिलता है, तो उससे आपका आंसर काफ़ी बैलेंस्ड बन पाता है। तो इसका आपको करना ज़रूरी है। तो इस तरह से मेंस का इंटरव्यू का प्रिपरेशन का रहा। मैं एक और बात कहते हुए बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू में आपको काफ़ी मतलब रिलैक्स फील होके अंदर जाना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। नर्वसनेस रहता है क्योंकि आपका पहला इंटरव्यू होता है, तो आपको टेंशन रहता है। और चूँकि आपके मेंस के नंबर भी आपको पता नहीं होते, तो आपको लगता है यार इंटरव्यू में सबसे अच्छा नंबर हम स्कोर कर लें। तो मैं ये कहूँगा कि आप वहाँ पे डिलीजेंटली जाइए और अंदर अपने नर्व्स को आप थोड़ा काम रखने का ट्राई कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी मतलब कॉर्डियल होते हैं, तो वो काफ़ी आपको वक्त देते हैं आपकी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। तो आप उनकी चीज़ों का ध्यान रखिए। और जैसे जब वो कुछ क्वेश्चन आपको पूछते हैं और आपको अगर नहीं आता है, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सॉरी सर, आई डोंट नो। किसी क्वेश्चन को आप अगर ठीक से ना सुन पाए हो तो सॉरी सर, कैन यू प्लीज़ रिपीट। और कभी नहीं आता तो आप उसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं कि सर अपॉलॉजीज सर, आई एम नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। तो आप थोड़ा एक ही चीज़ को थोड़ा आप 1-2 बार डिफरेंट तरीके से भी बोल सकते हैं जो आपको सॉरी बोलने का है। और उसके अलावा ये है कि इंटरव्यू किसी भी दिशा में जा सकता है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। कई बार होता है कि आप 4-5 क्वेश्चन आपको लगातार ही नहीं आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन अपना बैलेंस बनाए रखिए और आपके चेहरे पे घबराहट ना आए इसकी कोशिश कीजिए। और नॉर्मली जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे इंटरव्यू में, मेरा पहला ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप सूरत में पढ़े हैं, तो सूरत की ऐसी क्या चीज़ है जो आप मिस करते हैं। तो मैंने तो बहुत ही मजाक में कह दिया कि सर मेरे को सूरत का लोचो कहीं खाने को नहीं मिलता है। तो उस वजह से सर हंसने लग गया। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें खमन मिल जाता है कि गुजरात का खाने को। तो मैंने सर वो तो मेरी वाइफ बहुत अच्छा बना लेती है। तो इससे माहौल पूरा एकदम इंटरव्यू का शुरू में ही काफ़ी लाइट हो गया। तो उसके बाद जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे वो कुछ फॉरेस्ट रिलेटेड थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में ऐसे आ गए कि जैसे आप IIT बॉम्बे से पढ़े हैं, तो IIT बॉम्बे में लोगों को अब तक नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला, तो कहाँ हम कमी रह गए रिसर्च में, हम कहाँ नहीं मतलब कहाँ हम नहीं क्या हम नहीं कर पा रहे हैं रिसर्च में। और ऐसे ही फिर उन्होंने एक्चुअली शायद एक पैनल में भी शायद IIT बॉम्बे के होंगे कभी पास्ट के, तो उन्हें ऐसा आया कि हमारे टाइम पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो आज क्या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है कैंपस में। तो मैंने जैसे कहा कि लेपर्ड का कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये टोल्ड कि क्यों ऐसा है। तो आपको थोड़ा सा जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उसमें आप जिज्ञासा रखिए जानने की भी कि क्या ऐसे वजह है जिससे ये सब चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कभी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो लास्ट 1-2 महीने के करंट डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए और आपके एनालिसिस भी उसमें होनी चाहिए। जैसे मुझे एक पूरे मेंबर ने सिर्फ पॉलिटिकल और साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि मैं बैंक में मैंने वर्क किया है, तो उन्होंने साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक, तो इन सब टॉपिक्स को मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन इंटरव्यू में आ गया तो मैंने ट्राई किया कि जितना मेरे एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको मैं यूटिलाइज़ करके कैसे उनको मैं आंसर अच्छे से और एक बैलेंस करके दे पाऊँ। तो कई बार ऐसा होगा आपके साथ इंटरव्यू में, बट आप उसको घबराना नहीं चाहिए, आप उसको टैकल कीजिए टैक्टफुली और एकदम पेशेंटली, तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंटरव्यू में लगभग फॉरेस्ट का इंटरव्यू 20 से 25 मिनट चलते हैं और डिपेंड करता है। मेरे केस में उन्होंने कम से कम 25 सवाल वगैरह लगभग पूछे गए थे मुझसे, और मुझे लगता है कि उसमें लगभग 20-22 क्वेश्चंस का मैंने रिप्लाई दे दिया था अच्छे से, और 3-4 चीज़ें थी जो मैं नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल
एक बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन चेयरमैन सर ने पूछा कि लीडार क्या होता है, उसका क्या यूज़ है। तो मैंने पढ़ा है पर मुझे वो कभी याद ही नहीं आ पा रहा था, और उसके बावजूद भी मैंने कहा कि सर सॉरी सर आई डोंट नो। सर का वो क्वेश्चन कंटिन्यू रहा कि इसका क्या एप्लीकेशन है, चाइना इस्तेमाल कर रहा था, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन मेरे को इसके बियॉन्ड सर ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो आप थोड़ा ऑनेस्ट भी रहेंगे इंटरव्यू में तो आपको हेल्प करता है, क्योंकि वो वही चेक करना चाहते हैं कि आप कितने मतलब ऑनेस्ट हैं। और तो ये कहूँगा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कभी भी ना ब्लफ मत कीजिए कि आपको ये आता है। अगर नहीं आता है तो आप कह दीजिए कि नहीं आता है, तो उससे आपका मैटर सुलझ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि अगर सर और आप कुछ और आंसर ज़बरदस्ती का देने का ट्राई करेंगे तो आप उलझते जाएंगे और इंटरव्यू पूरा अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उससे आप बचने की पूरी कोशिश कीजिए, बेटर है, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। 4 पैनल मेंबर होते हैं टोटल, और चारों के पास अपने अपने क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनको गलत डायरेक्शन में इंगेज कर देंगे तो वो कभी अपने एक्चुअल क्वेश्चंस पे आ भी नहीं पाएंगे। और फिर बाकी मेंबर्स भी कई बार होता है कि फिर वो भी क्रॉस क्वेश्चन आपको करने लग जाते हैं, तो आपके खुद ही लगेगा कि आपका प्रेशर काफ़ी बिल्ड हो गया है। तो बेटर है कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करें, तो आपके लिए बेहतर है कि आपका पूरा इंटरव्यू का एक दिशा बहुत ही पॉजिटिव और एनवायरनमेंट बहुत ही आपका पॉजिटिव बना रहेगा, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी अच्छे स्कोर पाने में। एक और चीज़ मैं प्रीलिम्स में आपको बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स में फॉरेस्ट का कट ऑफ चूँकि काफ़ी ऊपर होता है, तो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कई बार ज़्यादा अटैम्प्ट करने पड़ जाते हैं, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी नहीं है तो मेरे हिसाब से 90 प्लस 93 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो तो अच्छा रहता है। नॉर्मली मैं अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में जब मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाता था, मैं 82-85 क्वेश्चंस करता था और मेरे कभी भी मतलब फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं होता था। इस बार मैंने चांस ये लिया है कि जिसके बारे में मुझे थोड़ा भी वेग आइडिया है और रिस्क कम है, तो मैं उसके बारे में ज़रूर कोशिश करता था। तो इस वजह से प्रीलिम्स में मैं स्कोर कर पाया। तो वो एक ज़रूरी फैक्टर है। और सीसैट को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, इसके बावजूद मेरा सीसैट 2 बार क्लियर नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही आपको ऐसा लगेगा आसान चीज़ है, बट उसको प्लीज़ कृपया करके इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जीएस की प्रिपरेशन अच्छी है पर सीसैट का अच्छा नहीं है। तो बहुत लोगों का मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है। और मेंस का मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा आंसर राइटिंग और पेपर फॉर्मेट के बारे में। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, वो अपने सिविल सर्विसेज थोड़ा अलग होता है। एक ही जीके का पेपर होता है, उसमें 24 क्वेश्चंस होते हैं और देर आर 6 पार्ट्स। तो 6 पार्ट, एक होता है आपके पॉलिटी पे होता है, इकोनॉमी का होता है, एक आपका हिस्ट्री का होता है, एक आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे रहता है, साइंस एंड टेक का रहता है, और कभी कभार काफ़ी क्वेश्चन एग्रीकल्चर या बायोटेक्नोलॉजी पे भी होते हैं। तो ये आपको ज़रूरी है कि आप 24 क्वेश्चन है तो 3 घंटे में करना है। तो आपका एक स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपका पेपर कई बार छूटने का चांस रहता है। तो उसके लिए मैंने तो ये बनाया था कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, 1.5 पेज के बियॉन्ड नहीं लिखूंगा, और अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं 1/3/4 के बियॉन्ड नहीं लिखूंगा, 1.25 पेज से कम ज़्यादा नहीं लिखूंगा। तो इससे आपका एक कंट्रोल में रहते हैं और आपका एक समय सीमा के अंदर आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इसमें कई बार अगर आप ऐसा अप्रोच रखेंगे तो आप ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही आप पेपर में ऐड करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप टू द पॉइंट हिट कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके स्कोरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश की प्रिपरेशन मैं नहीं कर पाया था ज़्यादा अच्छे से, लेकिन ये बहुत ही रिवॉर्डिंग है अगर जिसने प्रिपरेशन अच्छी रखी है। तो आप रोज़ाना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 45-50 डेज़ के ड्यूरेशन में अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, तो आप इंग्लिश को डेली आधा घंटा दीजिए, अपने ग्रामर को सही कीजिए, ऐसे राइटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे और प्रेसी की, तो आप काफ़ी कंफर्टेबली इसमें स्कोर कर सकते हैं। और ऐसे ही जियोलॉजी का जो होता है, जियोलॉजी ऑप्शनल में अपने पास अराउंड 8 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 8 ऐसे पार्ट ए पार्ट बी में 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको पहले पार्ट में से या तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है पार्ट 1 या पार्ट 1 और पार्ट 2 में, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको सेलेक्ट करना है कि 2 ऑफ देम या 1 ऑफ देम। ओवरऑल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वो आपको बहुत ही वाइजली चुनने का ट्राई कीजिए, जो भी आपका कंफर्ट वाला एरिया है उसका चूज़ कीजिए। कई बार होगा कि आपके पर्टिकुलर सेक्शन में जब 3-3 क्वेश्चन हैं तो वो एक जैसे नहीं होंगे, आपको लग रहा है कि सिर्फ 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहे, कभी लगेगा 2 आ रहे हैं 1 नहीं आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप सोचिए कि आप कहाँ पे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। एंड सिमिलरली फॉरेस्ट्री का पेपर का भी सेम पैटर्न होता है। 400 नंबर का पेपर होता है, 2 पार्ट्स में होता है, पेपर 1 पेपर 2, और उसमें अलग अलग सेक्शंस के होते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन फॉरेस्ट्री के अटेम्प्ट किए जा सकते हैं आपके जनरल नॉलेज से भी, तो वो आपको करना चाहिए। और फॉरेस्ट्री के पेपर में पेपर छोड़ने ऐसा कोई स्कोप नहीं होता, क्योंकि वो इतना टेक्निकल
मतलब टेक्निकल है बट आप जनरल आंसर तो लिख ही सकते हैं, और तो ये आपका हो सकता है। सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम में एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका इंटरव्यू क्लियर होने के बाद भी फाइनल रिजल्ट जब आपके आ जाते हैं तो उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने बाद आपको मेडिकल टेस्ट और वॉकिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट में लगभग आपके नॉर्मल जो चेकअप्स होते हैं वो होते हैं बिफोर आपके सर्विसेज में जाने से पहले। फिजिकल टेस्ट वॉकिंग टेस्ट में इंपॉर्टेंट है कि 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में करने हैं। तो जैसे कई बच्चे हम जो एस्पिरेंट फेज़ में होते हैं तो हम रेगुलरली क्या होता है कि टेबल चेयर पे बैठते हैं, अपना पढ़ाई करते रहते हैं, तो हम फिज़िकल चीज़ों को बहुत ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं। तो अभी आपको मतलब रिज़ल्ट के बाद भी आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है, तो उसमें घबराने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जब आपको पता चल गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप डेली 4-5 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर रेगुलरली वॉकिंग या हल्की सी जॉगिंग आप करने की कोशिश करो, ताकि आपको लास्ट में दिक्कत नहीं हो। तो आपको अपना एंडोरेंस बिल्ड करना पड़ता है सो दैट आप वो 4 घंटे में कर लें। तो और उसमें भी कई बार सीनियर्स हम लोग को स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि 25 किलोमीटर करना है तो 15 किलोमीटर आप 2 घंटे में थोड़ा फास्ट पेस जॉगिंग करके कर लो, और बाकी का 10 किलोमीटर फिर 2 घंटे में बहुत ही आराम से हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। और जनरली ये दिल्ली में होता है, और दिल्ली का वेदर काफ़ी मतलब इस समय मई जून में जुलाई में अलग होता है, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि यहाँ ह्यूमिडिटी का लेवल रहता है, तो आपको डिहाइड्रेट नहीं होना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, कोकोनट वाटर पीजिए, और ये सब चीज़ें आप सिंपल चीज़ें आप कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको भी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सुबह 7 बजे से उठते हैं और फिर आप कई बार रात को 9-10 बजे तक पढ़ते हैं, तो कई बार आपको लाइफस्टाइल डिसीजेज होने का चांस रहता है, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग आवर से ये दिक्कतें हैं। तो इसके लिए मैं ये करता था कि सुबह उठते ही 7 बजे मुझे आधा घंटा मतलब जॉगिंग करने के लिए जाना ही जाना है, जॉगिंग और एक्सरसाइजेस। इससे मेरा फिजिकल हेल्थ बेटर रहता है, तो मैं लॉन्ग आवर सिटिंग कर सकता हूँ। और कई बार ये भी होता है कि जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको डिसीजेज होने के चांसेस भी कम रहते हैं, तो आप फिट रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और आपका मेंटल हेल्थ भी बेटर होता है अगर आपका एक रूटीन बन जाता है। तो इसके साथ ही ये भी है कि आप फिर टाइम शेड्यूल बनाइए अपना, कि आपको वीकली क्या टारगेट कंप्लीट करना है, मंथली क्या टारगेट कंप्लीट करना है, और मतलब इस हिसाब से आपको शेड्यूल अपना बनाना है कि आप ऐसे टारगेट्स बनाइए जो आप पूरा कर पाएँ। आपको ऐसे टारगेट्स नहीं बनाने चाहिए जो आप पूरा कर ही नहीं सकते हैं, तो आप उसमें फिर लूप में हमेशा रहेंगे, गिल्ट में रहेंगे कि भाई मुझसे तो इतना हो ही नहीं रहा है। तो ये करने से आपको और मतलब नुकसान होगा, आप मेंटली थोड़ा और एंग्जाइटी और ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं, तो इससे आप ज़रूर बचिए। हर किसी का अपना अपना कैलिबर होता है, आप किसी से कंपेयर मत कीजिए दूसरे को, आपकी स्ट्रैटेजी खुद की हो सकती है, लेकिन आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव रखिएगा। आपके पास 1 साल का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने गियर शिफ्ट करते रहिए कि आपको कब स्लो पेस में पढ़ना है, कब आपको फास्ट पेस में पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब प्रीलिम्स आता है तो उसके 3 महीने पहले आपको टेस्ट सीरीज थोड़ी लगा लेनी चाहिए, थोड़ा आपका रिवीजन का लेवल बढ़ाना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़े। और जब भी आप कोई टेस्ट पेपर्स लिखते हैं तो उसको फिर अच्छे से एनालिसिस कीजिए, सो दैट आपको जो नया इन्फॉर्मेशन है वो आप मतलब रिकॉल कर पाए। और इसी के साथ मैं प्रीलिम्स का एक और चीज़ कहूँगा कि आप मॉक टेस्ट दीजिए खूब सारे, बट कई बार जैसे बहुत सारे ऐसे ओपन टेस्ट होते हैं जिसमें आपको स्कोर बहुत ही, आप एग्ज़ाम से 5 दिन 10 दिन पहले आपके स्कोर आ गए बहुत ही कम। जैसे मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, तो मैंने विजन का एक अभ्यास दिया था मेरे लास्ट ईयर के प्रीलिम्स के पहले, तो मेरे 65 नंबर आ रहे थे और लगातार 2 विजन के अभ्यास में। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही मतलब मेरा प्रिपरेशन है भी नहीं कम्प्लीटली, बट फाइनल एग्ज़ाम में मेरे प्रीलिम्स का सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विस दोनों कट ऑफ क्लियर हुआ बहुत ही अच्छे नंबर से। तो मैं कहूँगा कि किसी भी चीज़ को आप दिमाग पे इतना मत लीजिए कि आपको वो क्षति पहुँचाए, क्योंकि बहुत बार आपके जब नंबर लगातार मॉक में कम आते हैं तो आप खुद को जज करने लगते हैं, अपनी प्रिपरेशन को जज करने लगते हैं। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ़ बिलीफ रखिए और आपका पक्का अच्छे से होगा। और इसके साथ मेरे को और भी काफ़ी जगहों से एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं सिविल सर्विसेज की। तो मैं अपना बताऊंगा तो मैंने किसी भी टाइम पे किसी चीज़ की कोई कोचिंग नहीं ली है। 2017 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मैं कॉलेज में था। तो ये ज़रूर है कि मैंने अपने सीनियर्स को पूछा था कि क्या बुक्स आप लोग रेफ़र करते हैं जब आप सेलेक्ट हुए। तो उन्होंने जो बुक्स कही मैंने मार्केट से वो बुक मंगा ली। और इसमें ऐसा बहुत कुछ नहीं होता है जो आप खुद नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये इतिहास है, भूगोल है, मतलब हिस्ट्री है, जोग्राफ़ी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है।
तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें होंगी डिफ़िकल्टी, जैसे इकोनॉमी हमने कभी नहीं पढ़ा होता है 12th तक, जो साइंस स्ट्रीम के शायद बच्चे होते हैं, तो ये कर सकते हैं इकोनॉमी में कि जैसे मैंने मृणाल पटेल के सर के वेबसाइट से काफ़ी डिटेल में समझा था, वो फ्रीली अवेलेबल मटेरियल है। और जोग्राफ़ी भी थोड़ा कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी होता है, तो उसके लिए मृणाल सर के वेबसाइट पे ही मतलब जोग्राफ़ी का भी अच्छा कोर्स है। तो सेल्फ़ प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। जिन सब्जेक्ट को आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप यूट्यूब पे ढूंढिए, आपको डेफिनेटली कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अगर जैसे मैपिंग करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो मैपिंग के लिए आप बस यूट्यूब पे आप सर्च कर दीजिए कि आप डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, और ये सब में बहुत चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। मतलब सेल्फ़ प्रिपरेशन बिल्कुल मुमकिन है और आपको करना चाहिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई मना ही नहीं है, आप एक स्ट्रक्चर प्रिपरेशन उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ़ प्रिपरेशन में ये ज़रूर ध्यान देना है कि आप रेगुलर अपना शेड्यूल बनाइए और उसको आप टाइम से कंप्लीट करते रहिए। प्रिपरेशन के दौरान मैं किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं था, व्हाट्सएप के अलावा। और मैं ये भी बताऊंगा कि जब मैं लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो मुझे लगा कि इस बार तो मुझे क्लियर करना ही है, तो मैंने सच बताऊँ तो मैंने एक डब्बा फ़ोन ले लिया कि इस पे, और उस डब्बे फ़ोन का नंबर फिर मैंने सिर्फ इमरजेंसी में अपने वाइफ, अपने पेरेंट्स और अपने एक आध दोस्तों को सिर्फ दिया था। और मेरा जो रेगुलर फ़ोन था, स्मार्टफ़ोन, वो मैं अपनी वाइफ को दिया था, वो मेरे ऑफ़िस लेके चली जाती थी, ताकि घर पे रहेगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। और अगर मेरे घर पे भी फ़ोन है तो मैं उसको किसी अलमारी में बंद कर देता था कि मेरे को रेजिस्टेंस आए कि मैं अपने टेबल चेयर से उठ के उस अलमारी के लॉक को खोलूँ और वहाँ से अपना फ़ोन निकालूँ। तो इससे मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम अच्छा खासा, मतलब या तो पढ़ने पे या फिर मैं रेस्ट टाइम देता था, तो उससे मेरे को एनर्जी रहती थी, एनर्जी लेवल अच्छा रहता था मेरा। तो ये मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया आपकी इच्छा है, काफ़ी लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मेरा सल्यूशन ये है कि मैं चीज़ों को फिर अपने से दूर कर देता हूँ, जो मेरे लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होता है। लेकिन अब रिसेंटली फिर मैंने जब सब कुछ हो गया तो अब मैं वापस सोशल मीडिया पे आया हूँ। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे जर्नी में कि आप अपने एक टाइम शेड्यूल ज़रूर बनाइए, बट उसमें आपको एकदम से ऐसा नहीं करना है कि आपको लोग कहते हैं कि 16 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, ये ज़रूरी नहीं है। आपका किसी दिन आपका अगर बहुत ही अच्छा फेज़ में आप हो तो आप 12 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपको एफर्टलेसली वो हो जाएगा। तो आप ये फोकस करो कि मेरे पास कितना टॉपिक है और कितने टाइम में करना है, और आपके पास कितने दिन है वो सब्जेक्ट को करने के लिए, उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अगर आपका कंफर्ट लेवल है तो आप कम टाइम में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको वो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है तो आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट भी करना पड़ सकता है। तो मेरे तो समय में मैं ये कहूँगा कि मैं एक मैरिड पर्सन भी हूँ और मैं जॉब भी करता था जब मैं बीच के प्रिपरेशन में, एक्सेप्ट द लास्ट ईयर प्रिपरेशन। तो लास्ट ईयर फिर मैंने ये था कि मैं टाइम ऐसा देखता था जहाँ पे मेरे फैमिली भी मुझसे अवेयर है। जैसे अगर मेरी वाइफ अगर 11 बजे ऑफिस जाती है तो मैं 11 बजे अपना पढ़ना स्टार्ट करूँगा और 9 बजे तक या 8 बजे तक पढ़ूँगा। बीच में आपने थोड़े बहुत ब्रेक्स ले लिए कि थोड़ा वॉकिंग कराए या फिर थोड़ा घूम आए या लोगों से बात कर ली, जिससे आपका थोड़ा माइंड ठीक रहता है। और 50-60 मिनट का आप पढ़ने के बाद आप 10 मिनट का ज़रूर ब्रेक लीजिए, उससे हेल्प मिलता है। और आप रेगुलर ऐसे पानी पीते रहिए, चाहे ये सब चीज़ें करते रहिए आप बीच बीच में, ताकि आप भूल नहीं जाए सब चीज़। तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम के बारे में एक चीज़ और कहूँगा मैं कि कई बार होता है कि मतलब सम पीपल आर नॉक्टर्नल, किसी को लगता है कि रात में पढ़ना अच्छा है, किसी को लगता है दिन में पढ़ना अच्छा है। तो जैसे आपका इच्छा वैसे पढ़ो, मतलब इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप कैसे पढ़ेंगे। मतलब आपका टाइम है, आप सेल्फ पेस लर्निंग है, तो आप अपने हिसाब से कीजिए। अगर आप 8 घंटा दे पाते हैं तो 8 घंटा दीजिए, अगर आप 10 घंटा दे पाते हैं आप 10 घंटा दीजिए। और कई बार मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जब आप टाइम का क्रंच होता है ना, तो उसमें आप और अच्छा आपकी एफिशिएंसी आती है। आपको पता है कि मुझे 8 ही घंटे का आज टाइम है, तो आप और एफिशिएंटली पढ़ेंगे। लेकिन आपको लगता है आज मेरे पास 14 घंटा है, तो आप एकदम ही आलस होकर आप धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि टाइम क्रंच रहता है तो कई बार आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो एक चीज़ माइंड में आप रख सकते हैं। और मेरे हिसाब से 7 से 8 घंटा भी अगर आप डेली मेंटेन करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी पेस है, क्योंकि किसी दिन आप खुद भी आपको लगेगा 10-12 घंटे पढ़ लेते हैं। तो रेगुलर आप 7 से 8 घंटा, 9 घंटे टारगेट कर सकते हैं। और कभी कभार आपको लग रहा है कि आपको पढ़ना है तो आप ज़्यादा जा सकते हैं। एक चीज़ और कहूँगा कि इसमें आप एक वीक में एटलीस्ट 5-6 घंटे का, 8 घंटे का ब्रेक लीजिए। जैसे संडे को आप हाफ डे ब्रेक ले सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ जाइए, तो माइंड फ्रेश होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। 3-4 महीने आपके हो गए, 5 महीने, अगर आपको लगता है आप एक ही कमरे में बंद हैं रेगुलरली, तो आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा ब्रेक लीजिए, 1-2 दिन का कहीं ट्रिप करके आ जाइए फ्रेंड्स के साथ, तो आपको फिर ही एनर्जाइज आप हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आप, बेसिक चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं, तो आपको और इससे हेल्प भी मिलती है प्रिपरेशन में।
जो कि हमें रियलाइज़ नहीं होता। हमें लगता है ब्रेक लेना हमारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि हम तो एस्पिरेंट हैं, हम ले ही नहीं सकते ब्रेक। पर मैं कहता हूँ आप 1-2 दिन का ब्रेक 2 महीने 3 महीने आप ले सकते हैं। आप अपने होम टाउन, अपने गाँव, अपने शहर, जहाँ भी आप रहते हैं आप उसको जाके विज़िट कीजिए। आपका क्या मोटिवेशन वापस बनता है। जैसे मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने गाँव जाता हूँ, अपनी परिस्थितियों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों के लिए तो आपने चाहा था कि शुरू करते हैं प्रिपरेशन। तो आपको लगता है कि ठीक है, आपके दादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ अच्छा करेंगे, आपके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आप उसमें घबराइए नहीं कि मैं तो प्रिपरेशन मतलब एकदम प्रिपरेशन, आप कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। कई बार होता है किसी की शादी है आपके दोस्त की और आपको नहीं जाना है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रीलिम्स के 5 दिन पहले आप चले जाइए, अगर है तो डेफिनेटली उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। पर आप आपके पास 5-6 महीना पहले है और आपको 1-2 दिन आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि बहुत से एस्पिरेंट्स को लगता है कि दिल्ली ही मतलब प्रिपरेशन का मतलब मक्का मदीना है, उनको यहाँ आना ही पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है। मैंने दिल्ली में कभी वक्त नहीं मतलब लगाया है। मैं कॉलेज में था तो मैंने कॉलेज में पढ़ लिया, मैं बैंगलोर रहता हूँ तो मैं बैंगलोर में पढ़ाई कर ली। तो आज आपके इस इंटरनेट के टाइम पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में मत्था टेकना आना ही है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आपके पास पूरे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उससे खुद भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे आप गांव में रहें किसी कोने में। जब आप गांव में बैठ के, मैं देखता हूं कि लोग जब रील अपलोड कर सकते हैं, तो आप उस इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को आप और अच्छे से क्यों नहीं यूज़ कर सकते अपने पढ़ाई के लिए। तो आप अगर आपका ध्येय सही है और आपका लक्ष्य सही है कि आपको कुछ बदलना है, आपको कुछ करना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको दिल्ली में है या आप इलाहाबाद में या किस शहर में है। वो शहर और गाँव मैटर नहीं करता है अगर आपको एक्सेस टू द इंटरनेट अगर है तो। जो कि मैं मानता हूँ कि कोविड के बाद हर घर में स्मार्टफ़ोन है, हर घर में इंटरनेट है, तो उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप सही जगह पहुंच जाएंगे। मेरी एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस रहेगी कि आप इस एग्ज़ाम को एकदम क्लियर फोकस होके प्रिपरेशन कीजिए और उसको आप पूरा आप अपना एफ़र्ट डालिए। आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आपने अपना 100% एफ़र्ट नहीं डाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर एफ़र्ट डालने के बाद भी अगर आपका नहीं होता है, बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका नहीं होता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने अगर 2 से 3 अटैम्प्ट अगर कर लिया है, तो मैं मानता हूँ कि आपको एक सही टाइम है कि आप एक प्लान बी के बारे में सोचिए। उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपने तैयारी कर ली है 2 से 3 बार फुल अटैम्प्ट डाल के, फुल एफ़र्ट डाल के, तो आप 5 से 6 घंटा 4 घंटा भी करेंगे तो आप नौकरी के साथ भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट्स के लिए मुझे ये कहना होगा कि इससे आप अगर प्लान बी पे वर्क करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। तो किसी दिन अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हैं तो आपको हमेशा आपका कॉन्फिडेंस आपका हाई रहता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपका ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप ऑलरेडी एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप इस पर ध्यान दीजिए। और जो इस साल के ऑनगोइंग मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि आप इंतज़ार मत कीजिए। तो इसमें ये भी है कि आप ऐसा यूपीएससी को इतना बड़ा मतलब ड्रीम अच्छी चीज़ है, बट ऐसा नहीं कि ये ड्रीम हमको नहीं मिला तो हम एकदम लूज़र ही हो गए। तो लूज़र का थॉट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप अपने जगह से हमेशा ऊपर आते रहें और आप एक बेहतर इंसान बनते रहें। आप गांव में थे, आप शहर में आए, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने इतना सारा ज्ञान ले लिया। आप ये भी मत सोचिए कि उस ज्ञान का कहीं यूज़ नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे बोलूँगा ये कि मान लीजिए आप लास्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, अगर जैसे आपको लग रहा है कि आपका ज्ञान वेस्ट जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं है। कभी भी आप जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो आपको दिखेगा कि आपका जो कॉन्वर्सेशन करने का जो स्टैंडर्ड है, लोगों से कम्युनिकेशन करने का स्टैंडर्ड है, आपको जो दुनियादारी के बारे में जो चीज़ें पता है, वो बाकी लोगों से बहुत अलग है। और इसलिए आपको हमेशा लगता है कि आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कहीं भी कर सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की अच्छे से तैयारी करते हैं, आपके अंदर एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है, उसको आप वेस्ट मत कीजिए अननेसेसरीली। अगर आपका नहीं होता है तो, और आप कोई डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार मत बनिए। मेरे ख्याल से आप जाइए प्राइवेट सेक्टर में, बहुत अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि यहाँ भी आप ये सोचिए कि जब आपने शुरू किया था इतने सारे सब्जेक्ट्स थे और आपने 1 साल में सब समझ लिया, पढ़ लिया 1.5 साल में, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे वहाँ सब कुछ नया होगा। मैं कहता हूँ जितना हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उसका 10% भी प्राइवेट सेक्टर में उसका वर्क नहीं है। तो आप उसमें जाइए और आपका काम हो जाएगा और आप उसमें सीख सकते हैं। हमेशा अपने को अपस्किल करने में आप फोकस करते रहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अंत में मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करना चाहूँगा। आप मुझे, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे email ID sanish854
sanish@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं, और नहीं तो इंस्टाग्राम पे ही मेरा अकाउंट है सनीश एज इट इज़, सनीश कुमार सिंह बाय द नेम, तो वहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड फाइनली आई वांट टू थैंक दिल्ली नॉलेज ट्रैक, जो काफ़ी एस्पिरेंट्स का जर्नी शेयर करते रहे। तो जब मैं भी दूर बैठा जब ये वीडियो देखता था और एस्पिरेंट्स का, तो उनकी डिटेल स्ट्रैटेजी से मुझे मदद मिलती थी ये समझने में कि लोग क्या कर रहे हैं एक टॉपर बनने के लिए, तो हम उन चीज़ों को अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड कर पाते थे। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक फॉर इंस्पायरिंग द एस्पिरेंट्स एंड कीप डूइंग इट।